Hello, Assalamu alaikum. What happened today? Guys are not joining. It's already a little late. Okay. All right. So, is there anything to showcase or any anything you guys want to show? Or shall we move on? Nothing from my side, sir. Okay. Assalamu alaikum, sir. Welcome, Salva. Yes, sir. I did yesterday. Okay. I'll demonstrate. Yeah. Yes, sir. So in LinkedIn, I made a business profile, Okay. a page that is. Then I even added a post. Hmm. Then ad campaign also, Okay. whose preview Hmm. is this. Okay. So this is LinkedIn done. Then the way Aslam did yesterday, I also did Twitter, Okay. did a post, Hmm. as well as explored the ad manager Hmm. and set up a draft. Okay. One thing I noticed in Twitter was that for bill payment and all, it only supports US dollars. Hmm. So that was one point which I noticed, because so far we had our Indian currency in mind, but Right. here it only allowed in US dollars. Right. Yes. That's it, sir. Okay. Yes, that's correct that Twitter only accepts US dollar, whereas LinkedIn and other platform accepts INR as well. Yes. Yeah, that's okay. Thank you, sir. Anyone else? Fatima, Farha? Okay. So all of you, I'm like Salva, you are from CSE background, right? Sir. Yeah. And Fatima, Farha, Aslam, and Shahriar? Fatima, Shahriar, and Aslam are also from CSE. Okay. Besides Farah. Okay. And Farha? MBA, sir. MBA. Okay. All right. So to CS guys, are you guys aware of Wix, this website building platform? Wix, W-I-X. Yes, sir. Yes, sir. While starting before, when we were doing web pages and all, like we do use HTML, CSS and all. Mhm. So when we were doing it, ads were coming. Wix, open your website, because it knew, SEO knew that we were trying to look for some codes and all. Mm. So I just explored it once, Mm. but I didn't really try to Okay. go for it. Okay. Anyone else? Fatima, Aslam, or Shahriar? Yes, sir. Wix is a no-code website builder tool. Mhm. So you explored it anytime, or you made anything on Wix or? No, sir. I just got to know when it has been launched around 2020. I got to know that product where it was built. It was built in Israel, and nothing else. Like it's just a The superficial part, right? replacement of Webflow. Okay. All right. Cool. So I wanted to go through the complete level of making a website on Wix, but I'm surprised to see today's attendance is, I think, the lowest in the whole time frame. Whatever we had been doing, only 5 members out of 12. Hmm. सबको नींद लग गई जैसा दिख रहा है सर. Yeah. But I mean, anyways, so we will start exploring it, right? So it's okay.
I'll just open that and then we'll showcase a little bit about it, and then rest of the things we'll do. All right. So my screen is visible to you guys, right? Okay. Yes, sir. So in Wix, unlike like any other platform, yeah, the way Canva is there, yeah, जिस तरह से हम लोग Facebook, LinkedIn जैसे भी देखे, so everywhere we have to create our profile. So first of all, Wix में sign up है, that you can sign up either your Google login password, or you can directly create an account in Wix. So since I already have it, but still you will find this kind of button, so you can go to get started. Under sign up, you'll find few things. So email, type your email password and type your password again, or you can directly go with LinkedIn or Facebook, sorry, Google and Facebook. Whereas I already have an account, so I'll be directly going through that. I know this could be very easy for CS guys, but still for others also. Uh, it is quite simpler. Right. So the moment we go to Wix, it will ask for creating a website, create a new website. Then it will ask for which profile you carry, whatever it is, you are a consultant, online store, portfolio, blog, or technology company. So let's see, if I'm putting as a consultant, it is asking for which kind of consultant, right? You can put it based on the way that you guys have created your profile. Then it comes this screen where let Wix ADI create a website for you, or create your own website with editor. So go on, create your own website with editor template. You'll get a lot of templates available the way that you get at other platforms also, ready-made templates. Here also you will find lot of templates which are available. More or less these are single page websites, single page templates, but you can create multiple pages as well, right? So we can go with either in a business and services, you will find lot of categories which are there. Similarly, health and services, beauty, fashion, for almost every kind of thing, there is something or the other available. Okay, so let's see that I'm going with advertising and marketing part, or service and maintenance I can go, or consulting and coaching. So let's say I have chosen consulting and coaching. Okay, so I can choose any of a template which is available, and then go as an editor. We can edit that and go on to the next, right? So there are various templates which are available. I can take anyone, doesn't matter. So if example, I choose to take this one. Okay, so this structure will come. Now we can make changes the way that we want. Okay, all these placeholders are editable. Here is the place where we can edit. We can place our icon, or we can edit our logo, or we can place our logo, whatever it is.
So it is a button. I can make changes, or I can make something like we can put image also over here. That's not a problem. So to insert image, we just have to go to add, and then there is add button, and we can put image. Now for image, we need to upload it from our local system. Okay, so upload. You can choose whatever is available, or you can directly go and upload your image. So this is also possible. Upload from media, I can choose it, or I can upload it from computer. It's easily drag and drop kind of scenario, but still. I just want to put icon, I can put that way, or I can put whole caption. Add to a page. So the moment I add it, it's getting added. I can resize it. Resizing is again as simple as drag and drop. You can manage all these things. तो अगर हमें इसको ऊपर प्लेस करना है, हम इसको रिसाइज करके इसको प्लेस कर सकते हैं. If I want to place this button, it's okay, or else I can keep it over here. यहाँ पे हम पूरा लोगो भी अपना डाल सकते हैं, आइकॉन डाल सकते हैं. Like you can put image, you can put text the way that you want, because this is a ready-made template. So still it gives a lot of opportunity to make changes. Similarly, अगर ये background image है जिसको अगर हम change करना चाहते हैं on slider, I want to add some of my own image. हम अपना image डालना चाहते हैं तो हम ये पीछे के image को भी change कर सकते हैं, right? हम कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं. ये मल्टीपल 3 कॉलम्स का है, ये आपको कॉलम यहाँ पे डालना है या फिर आपको कोई और इंटरफेस डालना है, राइट? सो यू कैन चेंज दैट. स्ट्रिप कलर यू कैन चेंज. इमेजेस को हम लोग जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे अगर कोई इमेज हमको इंसर्ट करना है तो हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? सो you will get lot of options to work or play around. Okay, and then as simple as we can edit it. Any paragraph can be written over here, a small paragraph or bigger paragraph based on your requirement, right? But thing is, like, these content are something that will play a vital role in terms of when we will be doing SEO, or when we'll be doing organic promotion of our website. So it's always advised कि 50 words का अगर यहाँ पे एक पैराग्राफ या 100 words का एक पैराग्राफ अगर आप इंसर्ट कर सकते हैं, so that is always good. So what you have to do is, like, you have to write a paragraph for your company. और उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, राइट? सो
For example, I have written something like this. Okay, it's done. Changing color, changing things and all, that is doable option. Then followed by this, these are things which are coming. I can make changes over here. So as I said, like this could be very simple for CS guys, but even for management guys or even for people who are not aware of technology, they can also do it very conveniently. So it is not very tough thing. These sub content can also be changed. These things can also be changed, right? And the place where you will see there is something called learn more. Actually you can create, यहाँ पे आप नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, नए पेज भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप स्क्रॉल कर सकते हैं जहाँ पे भी आप लेके जाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर. सो मोर और लेस दीज टेम्पलेट्स आर सिंगल पेज टेम्पलेट्स, बट आप ऐड कर सकते हो. और गुड पार्ट इज यू कैन एक्चुअली सी कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस इस पर्टिकुलर वेबसाइट का कैसा होगा. That also you can see, and based on that you can make these changes. So whatever changes that you are going to make, more or less it will be mobile response, it will have mobile responsiveness. in mobile पे भी और दूसरे gadgets पे भी ये बिल्कुल सही दिखेगा. And then you can keep changing, right? आप जो इमेज यूज करना चाह रहे हैं या जो भी चीजें आप यूज करना चाह रहे हैं आप यूज कर सकते हैं. I just kept it like this. Baki, I'm like, this is the place where you can put testimonials, right? So ये तो fixed format है which you can change, or which you want to make changes, you can do that, right? Read it out more. So every template will have different versions of it. Now say for example I want to add a particular section over somewhere, right? तो अगर मुझे यहाँ पे कोई एक particular section add करना है तो हम यहाँ पर add कर सकते हैं. For example अगर आप add करने में जाएं, you want to add gallery, you can put that. Say for example I want to add a gallery. Okay, सिंगल लाइनर की गैलरी मुझे डालना है या ग्रिड फॉर्मेट की गैलरी डालना है, जैसे भी डालना है. So you'll get lot of options which are available over here, and you can choose any of the option and then that will come directly over there. Say for example अगर मुझे ये slider based अगर मुझे डालने का है, right? So I'll just choose that. Right, so slider based gallery will come. Now I can make changes in all these images. ये जो इमेज है इसको हम चेंज कर सकते हैं. मीडिया, मैनेज मीडिया पे जाके इमेजेस अपलोड करके हम इनको चेंज कर सकते हैं. So you want to make it a grid format or whatever the format you want to make it, you can do that. इमेज अपलोड करना है या वीडियो अपलोड करना है, जो भी आपको अपलोड करना है आप कर सकते हैं, right? So say for example I'll go over here and will try to upload few images from my computer. Any of these images, for example I want to just add
इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं हम, मीडिया से जाके हम इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से आप अगर किसी और सेक्शन में जाके कुछ और चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। वी कैन गो टू प्रीव्यू एंड सी हाउ दिस मोर और लेस वेबसाइट विल लुक लाइक। अब ये ओवरलैप कर रहा है, अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो इसको हमें चेंज करना है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर डूएबल एंड वी कैन एक्चुअली एडिट इट। मैं बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से नहीं कर रहा हूँ, इट आई विल बी लीविंग इट टू यू गाइज। रीजन इज यू गाइज कैन प्रैक्टिस इट मच मोर। अब इस अगर फिर भी मुझे और फर्दर चेंजेस करना है तो मैं फिर से बैक टू एडिटर पे जाके फिर इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने अगर वहाँ पे गैलरी डाला है विच इज़ नॉट वर्किंग आउट प्रॉपर फॉर मी, आई कैन एक्चुअली रिमूव दिस कंप्लीट इंटरफेस। ठीक है, वो पूरा का पूरा इंटरफेस हम रिमूव कर सकते हैं, वो पूरा सेक्शन रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मुझे ये सेक्शन रिमूव करके कुछ और मुझे डालना है तो मैं ये पूरे सेक्शन को भी मैं रिमूव करके यहाँ पे कुछ और सेक्शन में डाल सकता हूँ। क्या डालना चाह रहे हैं आप देख लीजिए, राइट। यू वांट टू पुट सर्टेन बॉक्सेस, या कुछ और डालना चाह रहे हैं, कुछ बैनर डालना चाह रहे हैं, टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं, जो भी आप, वीडियो, मेन्यू, सोशल आइकॉन्स, फॉर्म्स, whatever you want to add you can actually add it। या स्ट्रिप ऐड करना चाह रहे हैं, राइट, तो स्ट्रिप ऐड इस टाइप का भी हो सकता है, अबाउट टाइप का भी हो सकता है, सर्विसेज के लिए हो सकता है, सर्विसेज ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। ठीक है, वेलकम हो सकता है, टेस्टिमोनियल है, या टीम का अगर हमको डालना है। से फॉर एग्जांपल will like to put team over here, so I just kept team। यहाँ पे फिर आप आके जैसे आप कुछ भी एडिट कर रहे थे आप एडिट कर सकते हो, ये इमेज को चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन इट कम्स, ये फॉर्म है, फॉर्म ऑटो, जो भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो ये फॉर्म ऑन सबमिशन इट विल डायरेक्टली गो ऑन दैट पर्टिकुलर ईमेल आईडी। अगर आपको अपने फॉर्म के फील्ड को कस्टमाइज करना है या छोटा कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल या कुछ और आपको ऐड करना है, दैट ऑल्सो यू कैन ऐड। कॉन्टैक्ट्स एंड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट्स एंड फॉर्म है, या फिर आप ऑर्डर फॉर्म करना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन, राइट। आप गूगल मैप्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं या चैट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो भी किया जा सकता है। अगर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात करूं, या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, फर्स्ट समवन हैज टू रजिस्टर, या फिर सब्सक्रिप्शन वाला जो आता है न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आप डालना चाह रहे हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन है, राइट। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, you want to insert, you can actually insert it over here, right? आप देख लीजिए कौन सा आपको फॉर्म थोड़ा सही लग रहा है, या कोई और ऑप्शन आपको डालना है, वेर यू वांट टू ऐड लिटिल मोर फील्ड्स एज वेल, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड मैसेजेस है। अगर हम इसके फील्ड को चेंज करना चाहते हैं तो इसके फील्ड को भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट। और मतलब एक ऐसा यूज ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ फॉर्मेट है ये, कि जिसके अंदर आप सारी चीजों को चेंज करके अपने हिसाब के वेबसाइट को, अपने हिसाब के कंटेंट को आप बना सकते हो, राइट। उसी तरह से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके नेविगेशन हैं, आप इन नेविगेशन को भी आप चेंज कर सकते हो, यानी मैनेज मेन्यू में आप जाके इनको भी चेंज कर सकते हो कि किसको आप पहले रखना चाह रहे हो, किसको आप बाद में रखना चाह रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल आर सर्विसेज में यहाँ पे हम लोगों ने जो भी नीचे लिखा है वो हमें चेंज करना है, राइट। तो हम उसके हिसाब से इसको चेंज करके इसको टैग कर सकते हैं। हम इसको अगर होम के बाद करना चाहें तो ये होम के बाद हो जाएगा, यानी जस्ट सेकंड सेक्शन विल बी आर सर्विसेज, वाई चूजर्स, देन फॉलोड बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री की जगह पे अगर हम कुछ और रखना चाह रहे हैं तो हम इंडस्ट्री की जगह पे कुछ और भी रख सकते हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बट गुड पार्ट इज ये आपको सीधा सीधा उसी सेगमेंट में लेके चला जाएगा जिस सेगमेंट पे उस पर्टिकुलर सेगमेंट का कंटेंट है। okay. आपको इंडस्ट्री की जगह पे उसका नाम कुछ और करना है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए, राइट, रीनेम। कॉन्टैक्ट अस को आप कुछ और डालना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल
और आपको डायरेक्टली ये क्लाउड सेटिंग्स की जगह पे हम लोगों ने वेब डिजाइन, देन for example creative services. So whatever you want to do it, you want to make changes, you can make those changes and that will be available. Okay, ये सर्विसेज का वो पर्टिकुलर पेज के अंदर जाके उस पर्टिकुलर पेज का क्या कंटेंट होगा वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज इसकी जगह पे हम लोगों ने क्रिएटिव सर्विसेज डाला था, सो इट्स देयर। नाउ यू कैन मेक चेंजेस इन द कंटेंट एज वेल। तो एक एक पेज को थोड़ा सा ध्यान से अगर करेंगे, ये सारा पैराग्राफ ये क्रिएटिव सर्विसेज से रिलेटेड पेज हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम दूसरे दूसरे पेजेस के बारे में देखें तो हमारा पेज भी आ जाएगा, पेज भी क्रिएट होगा और एट द सेम टाइम उसके कंटेंट को भी आप चेंज कर सकते हो। नाउ आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि कम से कम एक 5-6 पेजेस की वेबसाइट बना लें इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ सिंगल पेज वेबसाइट। मेक एटलीस्ट 5-6 पेज वेबसाइट सो दैट उसको रैंक कराने में या एसईओ जब कर रहे होंगे तो उसको रैंक कराने में भी हेल्पफुल होगा। बिकॉज मल्टीपल पेजेस होंगे तो ज्यादा कंटेंट हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को और फिर हम ज्यादा उसके अंदर कीवर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं और भी प्रैक्टिसेस जो हमको करना है वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद जब आप ये सारी चीजें कर चुके होंगे तो उसके बाद आप इसको फिर से प्रीव्यू फॉर्मेट में आप देख लीजिए और प्रीव्यू फॉर्मेट में देखने के बाद फॉर एग्जांपल ये पेज है, ठीक है, हम होम पे चले गए। होम पे जाने के बाद हमारा होम ये है, आर सर्विसेज का पेज इस टाइप से है। ओके, लर्न मोर करने के बाद ये वहां पे आया। हम चाहें तो जैसे वहां पे क्रिएट वेब डिजाइन है, इस पेज के कंटेंट को हम चेंज कर लेंगे। फिर आर सर्विसेज पे जाके दूसरा पोर्शन अगर हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है, लर्न मोर पे अगर हम जाएंगे तो लर्न मोर ये हमको यहाँ पे है। तो इसके कंटेंट को फिर हम चेंज कर सकते हैं। ये सारा का सारा एडिटेबल फॉर्मेट में आप इस कंटेंट पेज के अंदर इमेजेस इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप वो भी इमेज इंसर्ट कर सकते हो। ये बैकग्राउंड का स्ट्रिप है, उसको चेंज करना चाहते हैं ब्लू कलर का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सो एवरीथिंग, एवरी कंपोनेंट इज एडिटेबल कंपोनेंट और इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। सो एज आई वाज सेइंग कि सीएस वाले बच्चों को, आप लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी बिकॉज यू माइट बी नोइंग much advanced than these interface. But for management graduates also, for guys who are doing management, for them also at least a basic website, or not only basic websites but almost a kind of good level website you can create using this particular platform और आप अपनी वेबसाइट पूरा का पूरा इसके ऊपर बना सकते हैं। राइट, अगर हम वर्टिकल्स पे चले गए तो वहां पे भी बहुत सारे लिस्टिंग्स हैं। राइट, तो उस पर्टिकुलर पेज को भी आप चेंज कर सकते हो। आईटी सॉल्यूशंस इंडस्ट्री, यहाँ पे जितने वर्टिकल्स हैं, यानी फॉर विच इंडस्ट्री यू हैव ऑलरेडी वर्क फॉर, तो ये एक इस पर्टिकुलर टेम्पलेट का ये स्ट्रक्चर है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म और वो सारी चीजें आपके होम पेज पे ही अवेलेबल है। अगर आप कॉन्टैक्ट के लिए दूसरा पेज बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। I can go back to editor, I can make changes। यहाँ पे जो भी है इसको हम चेंज करना है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। राइट, फॉर्म सेटिंग्स पे जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐड ए फील्ड अगर की बात करें तो यहाँ पे ऐड ए फील्ड का ऑप्शन आ जाता है। राइट, क्या क्या है, आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कैप्चा, फोन नंबर। मैं फोन नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, मैं फोन नंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया तो एक फोन नंबर का और आ गया। अगर मुझे कैप्चा डालना है, राइट, तो हम कैप्चा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये कैप्चा आई एम अ रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट काइंड ऑफ फॉर्मेट दैट विल कम। ठीक है, अगर मुझे रिमूव करना है मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सेलेक्ट किया और इसको रिमूव कर दिया। राइट, ऐड ए न्यू फील्ड्स। सो व्हाट यू विल गेट मेनी ऑप्शंस। बेसिक फील्ड्स हैं, एडवांस फील्ड्स हैं, राइट, एंटी स्पैम, captcha, right? So all these fields you can add. I have just kept phone number as one more,
बट फिर भी अगर आपको कुछ डालना है तो आप यहाँ पे और एडिशनल फील्ड्स डाल सकते हैं। वी कैन सी कि कौन कौन सा फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। ईमेल तो ऑलरेडी दिया हुआ था, सो इस वजह से बार बार ईमेल डालने की जरूरत नहीं है अपने को, बिकॉज ईमेल वाज ऑलरेडी देयर। तो इस तरह से हमारा हमारा फॉर्म बन गया। अब इसके अंदर हम बाकी चेंजेस जो करना चाहते हैं वो भी हम बाकी चेंजेस कर सकते हैं, राइट। अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या हो रहा है, इस फॉर्मेट के अंदर ये थोड़ा सा बल्कि हो रहा है, वेयर हमारा कॉन्टैक्ट अगर ऊपर नीचे हो रहा है, वी कैन ऑल्सो एडिट दैट फॉर्मेट। इसको आपको जितने लेवल पे रखना है उतने लेवल पे आप रख लीजिए, राइट। एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो यू कैन मैनेज। आपके एड्रेसेस हैं या बाकी चीज़ें जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फॉर्म सेटिंग्स में जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगी। ईमेल नोटिफिकेशन है, सबमिट टेबल है, या सबमिशन के बाद क्या मैसेज आना चाहिए, शो ए सक्सेस मैसेज, थैंक यू फॉर सबमिटिंग आप डालना है, या फिर आप इसको कुछ एडिट करना है, आप उसको एडिट भी कर सकते हो। जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। राइट, तो आप जो चेंजेस करना है वो भी चेंजेस कर सकते हैं। पेमेंट मोस्टली क्या है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में विक्स में पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद वो पेड ऑप्शन जो इसका प्रोफेशनल वर्जन है उसके साथ अवेलेबल है। बट मोर और लेस बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू create your mini website or full-fledged professional website over here. And once I'll go back and preview it, I can see अब यहाँ पे ये जो थोड़े से ऑप्शंस हैं, यानी ये जो एड्रेसेस वगैरह है ये बीच में आ रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और अपने हिसाब से हम इसको प्लेसमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Okay. आपको अगर यहाँ पे एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस आपको लिखना है तो आप वो एड्रेस भी लिख सकते हैं। चेंज योर फुटर डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कोई कलर नहीं रखना है या क्या रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और उसके बाद वहां पे यहाँ पे ये हो गया। अगर हमको यहाँ पे एड्रेस बार अगर हमको यहाँ पे डालना है तो हम यहाँ पे आके अपने एड्रेस बार या बटन्स या जो भी हम जिस सेक्शन को भी हम करना चाहें, कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म्स की बात करें, हम सिर्फ कॉन्टैक्ट है या फिर सिर्फ एड्रेस है, जो भी आप, या गूगल मैप आप डालना चाह रहे हैं तो यू कैन इंसर्ट गूगल मैप एज वेल। जिस फॉर्मेट का भी आपको गूगल मैप डालना है वो आप देख के अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। Now manage location, the moment you will go for manage location, आप द ऑप्शन क्लिक करके इसको डाल सकते हैं, राइट। जूम इन जूम आउट का जो भी ऑप्शन होता है वो आप कर सकते हैं। सो you will find lot of options which are available in the on this platform, and then finally you can submit it and then that will be your outcome, ठीक है। और ये सारी चीजें करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको पब्लिश करेंगे, ओके। इट्स नॉट दैट एक बार पब्लिश हो गया तो आप एडिट नहीं कर सकते। जब आप पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पब्लिश करने के बाद ये हमारे इस तरह की वेबसाइट निकल के आई है, राइट, विच इफ आई विल शेयर इट टू यू गाइज, यू कैन एक्चुअली ओपन इट। और ये एक तरह से कहिए कि एक वेबसाइट रेडी होके आपके सामने आ गया है, राइट। तो अब द मोमेंट वी विल गो फॉर दिस,
अब जो ये नाम है माई साइट जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप चेंज करना चाहो तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको अपने एडमिन जो इंटरफेस है हमारा, उसके अंदर जाके हम वहां पे जाके चेंजेस कर सकते हैं इसको। आप जब आप अपने अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे अकाउंट सेटिंग्स आता है, ठीक है। अकाउंट सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है डिजिटल KOL, मैं इसको यहाँ पे कौन सा नाम हम डालना चाह रहे हैं, यानी डिजिटल KOL की जगह पे अगर हम कुछ और नाम डालना चाह रहे हैं विच कुड बी, बिकॉज आप एक विक्स के एक अकाउंट पे एक ही तरह का सब डोमेन आ सकता है, यानी विक्स से पहले जो नाम आता है वो एक ही आ सकता है, वो मल्टीपल नहीं हो सकता। बट विक्स के बाद का जो पेज है उसका नाम आप अलग अलग डाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो प्रीफिक्स है, जो पहले डोमेन से विक्स से पहले जो पॉइंट आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस चीज के बारे में मैं बोल रहा हूँ। बट CS वाले बच्चे शायद इस चीज को समझ पाए, जिसको हम सब डोमेन कह रहे हैं, यानी विक्स से पहले जो वर्ड आता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं शाकिर मैं डालना चाह रहा हूँ, आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हो, आप अपनी चीजों को डाल सकते हो, राइट। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग। सो इट हैज टेकन, ओके। तो ये अब जो हमारा जो निकल के आएगा वो अगर हम देखेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, www.shakirdigitals.wix.com/my-site करके आएगा, राइट। तो अगर आप हम माई साइट में जाएंगे तो यहाँ पे अभी जो मैंने वेबसाइट बनाया है वो यहाँ पे दिख के आएगा, और हम उसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये आप देखिए आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। एडिटर में चला जाएगा तो आप वेबसाइट एडिट करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं, ये चीज हो गया। अब मैं बाकी चीजों को भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर आपके पास अपना डोमेन है तो आप अपने डोमेन के साथ अगर इसको कनेक्ट कर लें तो ये आपको आपकी वेबसाइट यानी .com के साथ आपको या .in के साथ जिसको भी है उसके साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से बाकी चीजों को भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप वहां पे जाके अपने 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 प्लान्स को भी चेंज कर सकते हैं, अपने अपने इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर सकते हैं, और जो भी कॉन्टैक्ट जो भी फॉर्म फिलअप हो रहा है वो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में आके यहाँ पे जमा हो जाएगा, ओके। रीनेम साइट की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे माई साइट आ रहा था, इसको मैंने जैसे एक कंसल्टिंग की साइट बनाई तो मैं इसको लिख सकता हूं ये सिर्फ लोअर केस ही एक्सेप्ट करता है इसलिए यहाँ पे रेड दे रहा है। दिस इज हाउ इट इज। नाउ आई विल से अपडेट, आई विल से सेव, ये सेव हो गया, ओके। अब मैं यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये हमारा और अब हम व्यू लाइव साइट पे जाएंगे तो इसका नाम क्या आ गया, shakirdigitals.wixsite.com/digitals-consulting. So this is a functional website which is there and we can use it for our purpose. When you will buy your own domain, अगर आपका अपना डोमेन होता है
तो आप विक्स साइट की जगह, वहां पे विक्स साइट की जगह पे मेन आपका जो डोमेन है वो आ जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द वे दैट इट इज। बट यहाँ पे क्या है, ये जो भी साइट बना रहे हैं ये विक्स के सर्वर पे ही रहेगा, यू मे नॉट बी एबल टू माइग्रेट इट टू एनी अदर सर्वर। सो विक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको जहां पे आप अपनी चीजों को कस्टमाइज करके इन फ्री यू कैन मेक योर वेबसाइट। आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं या आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और यहाँ पे मोर और लेस यू कैन ऑल्सो रन योर बिजनेस। वंस यू हैव योर ओन डोमेन, आप उसको कनेक्ट करके जब उसको कनेक्ट कर लेंगे तो www.domainname.com या .in जो भी होगा उस पर जाके आपको खुल जाएगा। जब वो आप प्रोफेशनल वर्जन ले लेंगे तो ये जो ऊपर में आ रहा है दिस साइट वाज डिजाइन्ड बाय विक्स, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। जब तक आप फ्री सर्विसेज विक्स साइट के इंटरफेस को यूज कर रहे हैं तब तक आपका ये विक्स साइट भी ऐसे ही आएगा, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये ऊपर की तरफ ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये भी ऐसे ही आएगा। बाकी चीजों के लिए जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये सारी चीजें हम लोगों ने चेंज कर लिया, कस्टमाइज कर लिया, और इसको हम यूज कर सकते हैं। नाउ इफ वी कैन यूज दिस फॉर एनी फ्यूचर पर्पज, या फिर हम बाहर भी इस चीज को सर्कुलेट कर सकते हैं। दिस इज एज इक्विवेलेंट एज एनी ऑफ योर प्रोफेशनल रन वेबसाइट। आप इसको यूज करते हुए आप गूगल कैंपेन रन कर सकते हैं, आप इन पेजेस का एसईओ कर सकते हैं, गूगल में ये पेजेस रैंक हो जाएंगे, और आपके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात है, मेटा टैग्स की बात है, या फिर एनालिटिक्स को इंसर्ट करने की बात है, सारी चीजें यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। और एज यूजुअल आपके जो भी कॉन्टैक्ट और जो भी ऑन सबमिशन जो भी है वो आपके पास ईमेल के फॉर्मेट में फॉर्म्स आपके पास पहुंच जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ दिस फ्री टूल यूजिंग विक्स वी कैन एक्चुअली डू इट, ओके। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप अपने हिसाब से अपने पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो हियर इज एन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि जैसे आप लोगों ने फेसबुक पेज बनाया है, आप लोगों ने ट्विटर बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, लिंक्डइन बनाया, सारी चीजें आप लोगों ने बना लिया है, और उसके बाद अब ये एक वेबसाइट का ऑप्शन है, राइट। सो यू गाइस प्लीज मेक वेबसाइट यूजिंग विक्स, और वहां पे आप देखेंगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने तो उतना कस्टमाइज नहीं किया, बट फॉर यू गाइज आप यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, यहाँ पे फेसबुक आइकॉन भी है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है। तो आप इन सारी चीजों को भी एडिट करके इसको एडिट करके इसका जो रियल लिंक है वो आप इसको प्रोवाइड करें, और बाकी सारी चेंजेस भी जो बैनर का है या फिर कंटेंट का है, टेक्स्ट का है, तो एक एटलीस्ट इंटरफेस क्रिएट कर लें। फिर स्लोली एंड स्लोली 2 दिन में 3 दिन में आप इस चीज को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वंस इट गेट्स कंप्लीटेड उसके बाद हम एसईओ के प्रोसेस की तरफ जाएंगे कि जहां की हमारी वेबसाइट रेडी होगी, फिर कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे, कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइज करेंगे। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पे मैंने जो टेम्पलेट चुना है वो मल्टीपल पेजेस वाले टेम्पलेट है, कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे सिंगल पेज वाला टेम्पलेट मिलेगा, तो सिंगल पेज यानी ऊपर कुछ भी क्लिक करें तो उसी पेज में नीचे के सेक्शन में चला जाता है, राइट। सो ट्राई टू सेलेक्ट अ टेम्पलेट जो कि मल्टीपल पेज वाला टेम्पलेट हो, सो दैट जब मल्टीपल पेज वाला टेम्पलेट होगा तो मल्टीपल पेजेस बनेंगे, कंटेंट ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा, और हर पेज को अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड्स को लेके हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको एक वेबसाइट भी बनानी है, और उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि सेटिंग्स में जाके आप उसके नाम को चेंज कर सकते हैं, तो उस चीज को चेंज करके आप बना लें। अब अगर मैं कोई भी यहाँ पे अगर मैं जितने भी मेरे पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं, राइट, अगर मैं यहाँ पे जाऊं डिजिटोस कंसल्टिंग के अलावा जितने भी पेजेस बने हुए हैं, अगर मैं उसको क्लिक करता हूं तो उसका जो सब डोमेन है वो वही आएगा, शाकिर डिजिटोस जो मैंने सब डोमेन बनाया हुआ है बस वही आएगा। अगर मैं चेंज करूंगा तो जितने भी मैं पेजेस बनाया हूं सबका सब चेंज हो जाएगा, ओके। यू कैन सी ये पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, डिजिटोस KOL करके आ रहा था, अब यहाँ पे सबके सब में यानी जितने भी पेजेस जितने भी साइट में यहाँ पे बनाऊंगा उसका ये जो है ये पहला जो सेक्शन है जो सब डोमेन कहलाता है ये यही रहेगा। तो अगर आप अपने इंटरफेस पे मल्टीपल साइट्स बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा सिर्फ लास्ट के एक्सटेंशन सिर्फ चेंज होंगे, ये वाला एज इज रहेगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो जितनी वेबसाइट्स बनाए होंगे सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, राइट।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो आप साइट बनाएंगे, डिफॉल्ट ये जो आपका ईमेल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल सलवा यहाँ पे है, सलवा 786@gmail.com से अगर आपने विक्स में लॉगिन किया है तो वो सब डोमेन जो है सलवा 786 ही ले लेता है। बट यू गेट एन ऑप्शन कि आप उसको एडिट कर सकते हो, ईमेल विल रिमेन सेम, बट आप उसके ऑप्शन को, आप सब डोमेन को चेंज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप ओवरऑल अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड वेबसाइट, बिकॉज बहुत सारे बैनर्स आप लोगों ने बना लिए हैं, बहुत सारे सर्विसेज आपको बिल्कुल क्लियर है, राइट। चाहे तो सलवा के लिए है या फातिमा है या असलम है या शहरयार हैं, राइट, फराह है, हाँ, राइट। तो ये सब लोगों ने, आप सब लोगों ने अपने अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक अपनी चीजों को बना रखा है। तो थोड़ा सा टाइम लगा के अगर इसको हम बना लेते हैं तो हमारी मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट रेडी हो जाती है। और अगर आपको बैनर बनाने की जरूरत है, कुछ भी है, तो यू गाइस नो, कैनवा पे जाके आप बैनर बना सकते हो, स्लाइडर बना सकते हो और उसको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंसर्ट कर सकते हो। गुड पार्ट इज, क्योंकि आप लोग सेम कॉलेज से हो, अगर कहीं पे एक दूसरे को सपोर्ट की जरूरत होती है तो सपोर्ट भी किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम मॉर्निंग में जब हम यहाँ पे मिलते हैं तो हम उन चीजों को फिक्स भी कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, राइट। तो ये आप सबके लिए एक असाइनमेंट के तौर पे है कि मल्टीपल पेजेस वाली वेबसाइट टेम्पलेट को आप चुनें और उसके बाद उसको कंप्लीटली थॉरोली उसको फिक्स करें। इट मे टेक कपल ऑफ डेज टाइम। मैं तो जल्दी जल्दी आप लोगों को एक इंटरफेस बता दिया, बिकॉज मैं अपने लिए वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ ये, इसलिए मैंने बता दिया। बट ऑप्शंस इतने सारे वहां पे हैं कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा और इसको आप इजीली बना सकते हैं, राइट। तो इज दैट क्लियर टू यू गाइस? दो जबकि आज का अटेंडेंस सबसे कम रहा इस बार के टेन्योर में, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को चीज क्लियर हो गई ना कि किस तरह से विक्स को यूज करना है और विक्स पे हमको क्या करना है। Yes, sir. Clear. राइट, फरहा, असलम एंड ऑल? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो विक्स पे एक साइट बनाइए, भले टाइम लगे, एक दिन की जगह पे 2 दिन टाइम लगे, 3 दिन टाइम लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको जब हम फ्रीज कर लेंगे, सारे फॉर्मेटिंग देखते हुए, चेंजेस देखते हुए, मोबाइल पे देख के और डेस्कटॉप वर्जन देखते हुए आप सारे सेटिंग्स को कर लें, और फिर उसके बाद जब एक हमारी फुल फ्लेज मल्टी पेजेस की वेबसाइट रेडी हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट भी लिखना है तो कंटेंट लिखने में हो सकता है आपको टाइम लगे, राइट। तो यू स्पेंड सम टाइम और हम सिर्फ उसमें को और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको हम रिव्यू करेंगे टिल द टाइम दैट यू आर रेडी। ओके फाइन, माय वेबसाइट इज रेडी। तो फिर हम जाएंगे आगे के लेवल पे कि कैसे हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे हम कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे, कैसे कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो वो सारी चीजों पे जाएंगे, ठीक है। सर, असलम, आर वी गोइंग टू यूज वर्डप्रेस? नहीं, वर्डप्रेस हम इस कोर्स के अंदर, ये चीज के अंदर हम वर्डप्रेस को नहीं इनकॉर्पोरेट किए, हमने विक्स को ही इनकॉर्पोरेट किया है। वर्डप्रेस थोड़ा सा टेकी हो जाता है, जो कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने विक्स को यूज किया है। वर्डप्रेस इज गुड फॉर सीएस गाइस, वो एनीवेज आप लोगों को आता होगा, आप लोग करते होंगे, बट इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो हम लोग अभी लर्निंग प्रोसेस में है, इसके अंदर हमने विक्स को लिया है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट। सो फॉर एवरीवन, आप लोगों के लिए ये चीज है, आप लोग करें, फिर उसके बाद हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइज, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।